आ जाएं। BSc पार्ट 3 11 बजे से दूसरी क्लास आपकी ले रहे हैं, आप ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, पेपर 7 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पेपर 7 में कुछ टॉपिक्स हो गए थे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फॉसिल। फॉसिल नाम से वाकिफ ही हैं आप लोग। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। ओके, but the formation of the fossil is a very rare happening. It depends upon the conditions and the chances of the preservation of the fossil. Okay, because once there was a living organism, and after its death it will become fossil. So the process of a once living organism becoming a fossil is called fossilization. The fossilization is a very rare process because the organisms that have lived on earth, one sec. हेलो। तो क्या कह रहे थे हम लोग? It is a very rare event because all the organisms that have lived on earth so far is not meeting those conditions by which their body will turn up into the preserved remains, which is called as fossil. Those conditions are rare, and the preservation of soft organs are even rarer. तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर रहते थे उनका बॉडी का फॉसिलाइजेशन हो सकता है, हो सकता था, लेकिन बहुत कम का हुआ। इसके पीछे के कुछ कारण हैं जिससे फॉसिलाइजेशन होता है। सम मैकेनिज्म्स आर देयर, ठीक है, जिससे फॉसिलाइजेशन होता है, जिसमें एक मैकेनिज्म का नाम है प्रिजर्वेशन, पर मिनरल, दूसरा मैकेनिज्म है पर मिनरलाइजेशन, मोल्ड्स, कास्ट, रिप्लेसमेंट, कंप्रेशन, ठीक है। ये सब जो है फॉसिलाइजेशन
के प्रोसेसेस हैं कि किस तरह से फॉसिल इन प्रोसेसेस के द्वारा प्रिजर्व होते हैं। हम एक वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये प्रिजर्वेशन के कंडीशंस अगर मीट नहीं करेंगे तो उनका बॉडी प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिके हो जाएगा, सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर्स हैं एनवायरनमेंट में, स्कैवेंजर्स हैं, वल्चर्स हैं। दे विल ईट दैट बॉडी, दैट कैरकास क्विकली। वल्चर, स्कैवेंजर्स उसके बॉडी को ईट कंज्यूम करेंगे, और जो बचा हुआ रहेगा रिमेनिंग फ्लेश, दैट विल बी टेकन अप बाय द इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया। और बाद में क्या छूटा रह जाएगा? उसके स्कैटर्ड बोन्स। And as the year will go by, the bones will further get scattered and fragmented into the pieces. And finally, eventually, it will turn up into the dust, and it will return the nutrients to the soil. So what you see as a result, that it is very rare for you to observe or to find fossils in the nature which is well preserved. It is very rare. Okay, because of these reasons. So question arises, how fossilization is taking place. So fossilization occurs in many ways. Most fossils are preserved in one of the five processes. Number one is the preservation. Preservation उसको कहते हैं जब बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स भी प्रिजर्व हो जाए। जैसे कि एम्बर एक सब्सटेंस है, उस एम्बर सब्सटेंस के अंदर जब बॉडी ट्रैप होता है, तो चूंकि ये पूरी तरीके से डिलिमिट कर देता है एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट को टू दिस डेड बॉडी, so the skin, hair and the soft organs are protected in this case. So any amber preserved fossil is very rare and it is very much valuable in giving you the information, because it has the preserved remains like skin, hair, etc. Otherwise these things would have gone if not have preserved in amber. Okay, so the scientist can study skin in the amber preserved fossils. Even the organs of the ancient creatures, if it is in amber, then that will be preserved and can be studied. ठीक है. The second process is permineralization. फिर पेट्रिफिकेशन है, मोल्ड्स हैं, कास्ट हैं, रिप्लेसमेंट हैं, कंप्रेशन है, ये सब मैकेनिज्म है. हम एक वन बाय वन इसको पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इन पांचों मैकेनिज्म में पहला प्रिजर्व्ड रिमेन्स. इट इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिलाइजेशन. Okay, where the preservation of original skeletal material
and even the soft tissue is taking place. For example, some insects have been preserved perfectly in amber. What is amber? It is an ancient tree sap. प्राग ऐतिहासिक काल के जो पेड़ थे उनसे निकलने वाला तरल पदार्थ जो कि काफी गाढ़ा था, उस तरल पदार्थ में कैद जो इंसेक्ट्स थे उस समय के, वह ट्रैप हो गए। बहुत सारे मैमथ भी, जायंट मैमथ, एलिफेंट लाइक एनिमल्स, इवन निएंडरथल मैन भी, ये सब ग्लेशियर में फ्रोजन मिले हैं इनके बॉडी। So these are preserved remains. So preserved remains are either found in ancient tree sap like amber, or the preserved remains of the mammoths and Neanderthals have been found in the frozen glaciers. ठीक, ग्लेशियर में या एम्बर में जो फॉसिल प्रिजर्व हो जाते हैं वो ये है। But these preserved remains are of the highest value of among the fossils, because these allows the scientist the rare opportunity to examine the skin, hair, the organs of the ancient creatures. Scientists have even collected the DNA from these remains and compared the DNA sequences to those modern creatures of that lineage. Because DNA, although DNA is a stable thing, but under more stable than RNA, but not that much stable. Upon mechanical shock and shearing, the DNA molecules can break. So, and over the period of time, DNA will disintegrate. But the preserved samples have the regions of the intact DNA. So those regions of DNA provide us the opportunity to compare it with the modern DNA of the modern relatives. To compare their DNA with the DNA of their modern relatives. ठीक है? तो प्रिजर्व रिमेन्स आप समझ गए। प्रिजर्व रिमेन्स हो गए या तो ग्लेशियर में फ्रोजन या एम्बर में प्रिजर्व्ड है, ये प्रिजर्व रिमेन्स हो गए। पर मिनरलाइजेशन, पर मिनरलाइजेशन कहते हैं। कभी कभी आप किसी ऐसे फॉसिल को देखोगे जिसमें फॉसिल का जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उन खाली जगहों पर मिनरल्स भर जाते हैं। जैसे कि सिलिका, मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे सिलिका का डिपोजिशन, which fill the empty spaces of the cells
and it is the most common form of fossilization. नाम है per mineralization. It is the most common form of fossilization. ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जब सपोज कि कोई बोन हो या वुड का फ्रैगमेंट हो या कोई सेल ही क्यों ना हो मोलस्क का, अगर वो सेडिमेंट में बड़ी हो जाता है, सेडिमेंट में बड़ी होने के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, it that portion, whether it is a wood or bone or cell, that will be exposed to the water. Okay, that will be the exposed to the water, because this is buried in the sedimentary rock, so that will be the exposed to that water, and the water is mineral rich. Okay, and this mineral rich water moves through the sediments. So the mineral rich water deposit these minerals, typically silica, into the empty spaces, and thereby it is producing a fossil which is permineralized. Okay, और ये ज्यादातर फॉसिल परमिनरलाइज्ड के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं. So fossilized dinosaur bones, or a petrified wood, और बहुत सारे मरीन फॉसिल्स भी इन पर मिनरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा बने हैं. ठीक है, समझ जाइए कि जो खाली जगह बच गया फॉसिल में, उन एम्प्टी स्पेसेस को मिनरल्स ने ऑक्युपाई कर लिया, जैसे कि सिलिका ने. तीसरा प्रोसेस है जिसके द्वारा फॉसिल्स बनते हैं, उनका नाम है मोल्ड्स एंड कास्ट. मोल्ड्स, मोल्ड एंड कास्ट आप समझिए कि किसी चीज का सांचा है, और सांचे में अगर कुछ चीज बनता है तो वो उस सांचे के अनुसार ढल जाता है. तो मोल्ड्स हो गया आपका कि मोल्ड्स हो गया आपका जब फॉसिल का सेल या बोन डिजॉल्व होता है, किसी मटेरियल में है वो पड़ा हुआ रॉक में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यह मोल्ड, यानी वह जगह जहां पर बोन होना चाहिए था, सपोज कि एक सेडिमेंटरी रॉक है, इसमें एक बोन है. ओके, अब इस बोन का अपना एरिया हुआ, इस बोन को जहां पर होना चाहिए था वह बोन वहां ना होकर के वो डिजॉल्व हो गया है, वो चला गया, उस बोन का मटेरियल पूरा चला गया, बट द स्पेस इज देयर. द स्पेस which is carved according to the shape of the bone, that space is there, that depression is there. तो मोल्ड उसको कहते हैं दैट डिप्रेशन, वह खाली जगह जो कि डेड बॉडी के जो रिमेन्स थे, उनका फॉसिलाइजेशन हो रहा है डेड बॉडी का, उन रिमेन्स के स्थान पर खाली जगह क्रिएट हो गया आफ्टर द
dissolution of that material, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो खाली जगह बच गया उसको हम कहते हैं मोल्ड, खांचा। ओके। और कास्ट उसको कहते हैं जब उस खांचे में, उस सांचे में अगर कोई पदार्थ भर जाए तो वह पदार्थ उस सांचे या खांचे का रूप ले लेगा अंदर की तरफ से, उसको कहते हैं हम कास्ट। So this cast is formed when mold is formed first. After the formation of mold, a cast is then formed. ठीक है? When the depression is filled with the sediment. Okay? वह एक खाली स्थान छोड़ जाता है, उस खाली स्थान का शेप उसी बोन या सेल के शेप के जैसा होता है जो वहां से डिजॉल्व हुआ था। तो यह खाली स्थान, यह डिप्रेशन इज कॉल्ड ए मोल्ड। और बाद में लेटर दैट स्पेस may be filled, if it is filled with other sediments, to form a matching cast in the shape of the original organism. So that is called as cast. So many mollusks, bivalves, snails and squid are commonly found in this form of the fossil. They are called molds. These are called as, so आप इनका फॉसिल्स देखोगे जब बायवाल्व्स का, स्नेल्स का, स्क्विड का, तो आपको मोल्ड और कास्ट के रूप में ये मिलेंगे। तीन हो गए, दो और, 5 प्रोसेस हैं फॉसिलाइजेशन के, 3 पढ़ लिए। प्रिजर्वेशन बता दिए, या तो ग्लेशियर में या एम्बर में, तो उसका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा, उसके बॉडी का दूसरे अंग, सॉफ्ट टिश्यूज भी। ठीक है। दूसरा बताए पर मिनरलाइजेशन। ठीक है। पर मिनरलाइजेशन उसको कहते थे जब डेड रिमेन्स का एम्प्टी स्पेस मिनरलाइज्ड हो जाए, उसका खाली जगह, डेड बॉडी में बहुत सारा खाली जगह है, उस खाली जगह में मिनरल्स भर गए और वो सॉलिडिफाई हो गया, सिलिका उसमें भर गया, उसको कहते हैं पर मिनरलाइजेशन। सबसे ज्यादा फॉसिल इसी टाइप के। तीसरा है आपका मोल्ड एंड कास्ट। ठीक है। यानी पहले मोल्ड का फॉर्मेशन, यानी जहां पर वो जगह थी बोन्स या सेल, वह डिजॉल्व हो गया। ठीक है। उस डिजॉल्व होने के बाद मोल्ड क्रिएट हुआ, उसी मोल्ड में फिर कोई दूसरा सब्सटेंस भर गया। ठीक है। शेप वही है उसके बोन का या सेल का, बट द मटेरियल इज डिफरेंट। पहले वो जब बॉडी था तो दूसरा मटेरियल से बना हुआ था, अब दूसरा मटेरियल से बना हुआ है। दिस मोल्ड एंड कास्ट, ये हुआ आपका। चौथा है आपका रिप्लेसमेंट, एंड द फिफ्थ वन इज कंप्रेशन। 5 प्रोसेस से फॉसिल्स का निर्माण होता है। रिप्लेसमेंट कहते हैं जब कभी, यानी इन लिटरल टर्म आप समझो कि रिप्लेसमेंट अकर्स व्हेन ओरिजिनल सेल और बोन डिजॉल्व्स अवे। ठीक। यानी यहां पर ये आपको मोल्ड जैसा समझ में आ रहा होगा, मोल्ड भी वही हो रहा था, मोल्ड में भी कि सेल और बोन जो ओरिजिनल था वो डिजॉल्व हो रहा है। मोल्ड में क्या हुआ,
वो डिजॉल्व हो गया, खाली जगह बचा, उस खाली जगह कोई दूसरा सब्सटेंस भर गया तो वो कास्ट हुआ। ओके। रिप्लेसमेंट में है कि व्हेन द ओरिजिनल सेल और बोन डिजॉल्व्स अवे and it is replaced by a different mineral. And when this occurs with the permineralization, it is called petrification. यानी रिप्लेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें ओरिजिनल सेल और बोन डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होके चला गया और किसी दूसरे मिनरल के द्वारा वह रिप्लेस हो गया, ओरिजिनल बोन और सेल। मोल्ड में भी यही बात कर रहे थे, लेकिन दोनों में भिन्नता थोड़ी सी यह है कि मोल्ड में दूसरा सब्सटेंस जब कास्ट भरा गया तो दैट कास्ट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट, दैट कास्ट इज ए फॉर्म ऑफ सेडिमेंट। लेकिन रिप्लेसमेंट में जब ओरिजिनल सेल और बोन डिजॉल्व हुआ तो उसी बोन, जहां पर बोन का पीसेज है, बोन के अंदर भी हॉलो स्पेस होगा। ओके, लाइक दैट द मटेरियल, द सेल मटेरियल और द बोन मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट मिनरल, सो इट इज हार्ड, इट इज, हाँ वो कास्ट भी हार्ड है, सेडिमेंट हार्ड है, बट इट इज ऑल्सो हार्ड, रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट मिनरल। ओके। और जब यह पर मिनरलाइजेशन के साथ होता है, यानी रिप्लेसमेंट प्लस पर मिनरलाइजेशन दोनों टुगेदर साथ चल रहे हैं, यानी रिप्लेसमेंट भी हो गया पूरा बोनी और सेल मटेरियल का विथ डिफरेंट मिनरल, और साथ ही साथ जो खाली जगह थे उनमें, जब ओरिजिनल बॉडी था तो बोन और सेल के अलावा जो खाली जगह बचा था, अब रिप्लेसमेंट के बाद तो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट होगा वैसा, उसके बाद जो खाली जगह जो बच रहे थे उन जगहों पर मिनरल का भरना, खाली जगहों पर भी पर मिनरलाइजेशन। तो रिप्लेसमेंट प्लस पर मिनरलाइजेशन इक्वल टू, इट इज कॉल्ड एज पेट्रिफिकेशन। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? फिर से बता दे रहे हैं कि कुछ केसेस में ओरिजिनल सेल और बोन डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व होके चले गए और वो रिप्लेस हो जाते हैं एक डिफरेंट मिनरल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स दैट वेर ओरिजिनली कैल्साइट, सेल जो है कैल्साइट टाइप का है, यानी मेड ऑफ कैलकेरियस मटेरियल, but that cell can be replaced by, which is made up of calcareous material, can be replaced by quartz. क्वार्ट्स तो लिविंग सिस्टम यूटिलाइज नहीं करती है, क्वार्ट्स, पायराइट, डोलोमाइट, इन सारे मिनरल्स के द्वारा वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो ठीक है, समझ रहे बात को आप लोग? रिप्लेसमेंट का बता रहे हैं आपको। रिप्लेसमेंट में एक और मॉडिफाइड फॉर्म है कि जब रिप्लेसमेंट और परमिनरलाइजेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम पेट्रिफिकेशन कहलाता है। So by this process the organic material is turning into stone. The fifth process is compression. So this is सिंपल प्रोसेस, आप समझो ऐसे कि यह
एक कॉमन फॉर्म है फॉसिलाइजेशन का, जो कि लीव्स और फर्न्स के फॉसिल्स में देखने को मिलता है. It is the most common form of fossilization of leaves and ferns, where a dark imprint of the fossil remains is created. Compression, छपाना, दब के, कंप्रेस करके. तो होता यह है कि कुछ फॉसिल्स जो है, जब उनके रिमेन्स नेचर के द्वारा बहुत ही हाई प्रेशर से कंप्रेस हो जाते हैं, तो दिस लीव्स बिहाइंड ए डार्क इम्प्रिंट ऑफ द फॉसिल. Okay, so compression is most common for fossils. Compression is most common for fossils of leaves and ferns, but they also occur in other organisms, but this is seen in the case of the fossil of leaves, ferns, etc. ठीक है. मोल्ड्स एंड कास्ट किस में देख रहे थे? मोलस्क के फॉसिल्स. ओके. एम्बर में कौन था प्रिजर्वेशन के द्वारा? इंसेक्ट्स बहुत सारे मिले हैं उसमें, एंशिएंट इंसेक्ट्स. ग्लेशियर में प्रिजर्व्ड कौन है? मैमथ्स. मैमथ्स के फॉसिल मिले हैं ग्लेशियर में प्रिजर्व्ड. ठीक. और सबसे ज्यादा फॉसिल के फॉर्म्स किस प्रकार के हैं? परमिनराइज फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? तो बहुत तरह के कंडीशंस जनरेट हो सकते हैं at the time of the death of the organism. If those conditions are favorable for the fossilization, then the fossil formation can occur. कंडीशंस क्या है? कंडीशन यही है कि आपको क्योंकि बॉडी को डिकम्पोजिशन से बचना है, यही कंडीशन है. ठीक है. इफ दैट बॉडी, डेड बॉडी इज contactless with the atmosphere, if that it becomes somehow, suppose if it is trapped in the amber or in the glacier, then the remains, the body remain is not in contact with the atmosphere, like these conditions. In addition to this, in the glaciers, a freezing temperature is also giving it a favor for the fossilization. Okay. So after the death of an organism, several forces contribute to the dissolution of its remains. Okay. The body can decay, or body can be eaten by the scavengers, predators. It will be attacked by the insects, maggots. Okay. So the soft parts of the body, the flesh part, can be taken up as a meal by these vultures and the organisms, decomposers, predators, etc. But the hard parts, if they are separable, then those hard parts will be dispersed by the predators, scavengers, or the currents, whether it is a wind current or the water current. And the bones are the joints.
So different bones are separated then. After this soft part is gone, then hard part, if it is separable, then it is dispersed. The individual, then the individual hard parts are subject to the chemical weathering and erosion. Okay. Also, animals are having this behavior that particularly predators and scavengers, that they crunch up bones because they are interested in the marrow and the cells. So the marrow, because they provide them, they extract that flesh inside, that flesh which is rich in nutrients. So the organisms also utilize this. Okay. So कहने का मतलब हुआ कि hard part भी, soft part भी, they get destroyed if the proper condition of the fossilizations are not met. Okay. So the preservation of an intact skeleton with the bones in their relative positions, hmm, is very important to know to understand the basic anatomy of that organism. Hmm. So, students, we have studied these 5 processes of fossil formation. If it is asked in the examination, how fossils are formed, then you should write this. These are the 5 processes of the fossil formation. Okay. तो आप इनके नोट्स बना लोगे. I have finished this fossil portion of your paper 7. So paper 7 में students, I have the syllabus. आपका ग्रुप ए में पेलियोजियोलॉजी हो गया. पेलियोजियोलॉजी में जियोलॉजिकल एरा हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी पढ़ चुके हैं, समझा दिए थे, और नोट्स कहाँ से बनाना है वो भी आपको बता दिए हैं. फॉसिल्स अभी बता दिए आपको. इसमें फॉसिल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अभी बताया, पूरा नहीं हुआ है अभी, सॉरी, क्योंकि एज डिटर्मिनेशन भी है इसमें. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ वी डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल्स, the various methods which are available for the determination of the age of fossil. We will study this in the next class. Okay. तो ये हो गया. इसके बाद आपका ये पेलियोजोलॉजी हो जाएगा, यानी एक लेक्चर हो बस बाकी है एज डिटर्मिनेशन वाला, उसके बाद हो जाएगा. फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है टॉपिक, जिसमें फॉसिल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स पढ़ चुके हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन हो चुका है, यानी ये दोनों टॉपिक हो गया. उसके बाद हम लोग जू जियोग्राफी में एंटर करेंगे. ओके. थोड़ा सा है, ग्रुप ए ऑफ दिस पेपर विल बी ओवर देन आफ्टर दिस. थैंक यू स्टूडेंट्स. See you in the next class, which will be about age determination of fossils.